Hi everyone, this is Tushar Annan back at you from 99 Workouts. Today's topic is very serious, very important because no one knows about a life, about the background, about what a personal trainer or trainer goes through in his daily routine. This topic was very intimate to me because I have worked as a personal trainer for more than a decade and trained numerous clients. So I know that everyone sees the front part, like the training part, the personality or whatever. But do we actually know what a trainer goes through? What is inside story? What are his problems? These are very very important to know your trainer. So my topic for today is know your trainer. You after this episode maybe I'll get a lot of comments because these are very emotional areas which I'm dealing with. So why don't you follow today? I'm going to make you meet not well. It's too early for me to tell you. Just follow me. I'm going to make you meet some very very interesting people, and they are very experienced. So this is a very crazy ring here, and just follow me, keep following me because these trainers are very experienced, and I'm going to introduce not one, two, but three people. That is Prashant. Hi Prashant. Hi Yogesh. Hi, sir. Ajay. These are trainers whom I'm known for more than a decade, and they've been there every day on the floor. I'm just seeing them working out. They take care of themselves, which is how a life of a personal trainer is. But does the client understand? Does the client know that what is the background of your trainer, what he goes through, what are his problems? Today we are going to solve each issue one by one from the horse's mouth, from the trainers themselves. So Prashant, welcome and all of you on 99 वर्कआउट्स. ये जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं बहुत इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए भी, और शायद लोगों को आपके लाइफ के बारे में कुछ शायद ना पता हो, क्योंकि सबको ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है, अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो कंप्लेंट्स आते हैं और काफ़ी कुछ संभालना पड़ता है वाइल ट्रेनिंग. प्रशांत, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कब स्टार्ट किया? व्हेन डिड यू स्टार्ट पर्सनल ट्रेनिंग? I started in 2005. ओके. So I was doing computer engineering. अच्छा. Yeah. So I was really fascinated about the workouts and going to the gym. I Okay. used to finish my exams. I used to be in the gym just to release the tension. So then I did one certification, and then after that I just started. योगेश जी से पूछते हैं कि योगेश जी आप कैसे आएंगे, आपका क्या बैकग्राउंड है और आप ये फील्ड में कैसे आए? So my background, actually I'm an athlete. So Okay. I used to play karate and kickboxing. Okay. I played international for represent India. ओके. Afterwards I love to teach the people. Then I start moving a little bit, doing a course, and then I started a little bit educate myself also. Then after that I saw that we lack a lot of in the nutrition and workout, because while playing the sports we need a proper guidance also, and we lack that. When I represent India, when I went to London, so I saw that there are a lot of people are there, they are huge, but India also best, but little bit of few problems we lack it there. Okay. So I move in and teaching, and my journey is still now 11 years. Oh wow. Okay. So Ajit, when did you start? आप कैसे आए इसमें? मैं जब आया था मीन्स लाइक आई वेंट फॉर टू जॉइन अ जिम एक्चुअली. अच्छा. तो कहीं एक तो आपका दोस्त बैकग्राउंड क्या, आपने एक्चुअली मैं जस्ट FY BA किया था अच्छा. और बहुत स्किनी था. हाँ. सब लोग चिढ़ाते थे कि यार क्या है बहुत ज़्यादा स्किनी वैसे. देन व्हेन आई डिसाइडेड टू जॉइन अ जिम, वहाँ पे एक दोस्त था, उसने कहा जिम तो 1 साल करेगा, और अगर तू फिटनेस का नॉलेज लेगा तुझे लाइफ टाइम के लिए वो फ़ायदा होगा उसका. राइट. और जब उसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो उसमें Right. साइंस भी होता है, एनाटॉमी होता है, काइनेटोमी भी होता है, अरे सारा इतना सारा चीज़ है, तो उसमें ही क्यों नहीं करियर बना. राइट. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या है उसमें, कैसा है. राइट. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर एंड मोर, और फिर उसके बाद जिम ज्वाइन किया, और उसके बाद पता चला कि जिम अभी इंडस्ट्री कितना कितना. साल हो गया अभी? अभी मुझे मोर देन 8 years हो गए हैं इस फील्ड में. So can you see, like all these guys here are nearly in
around 10 years, a decade in this industry. One from a different background, one an athlete, one who had come to join gym. सारे तीनों लोगों के experiences अलग हैं, लेकिन आज एक 8-10 साल के बाद ये एक इंडस्ट्री में है जहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग इज़ वेरी पॉपुलर। एक प्रशांत आपसे एक क्वेश्चन ये है जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्सनल ट्रेनिंग का फ़ी क्यों इतना हाई होता है? राइट सर, हम लोग अगर किसी को पूछते हैं कि आप जॉब क्या करते हैं, स्पेशली टू द डॉक्टर्स एंड टू द लॉयर, दे विल से वी आर प्रैक्टिसिंग. सो आई बिलीव एज अ ट्रेनर वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग. सो अबाउट द चार्जेस सर, हम लोग ये कोशिश में रहते कि हर साल हम लोग अपना नॉलेज अपग्रेड करें. अगर आप एक वर्कशॉप का अगर आप अटेंड करना है फॉर द ट्रेनर, उसका फ़ीस कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये उसका फ़ीस होता है. सो आपको चार्जेस हाई लगते हैं, बट यू नीड टू चेक पर्सनल ट्रेनर्स करियर, लाइक व्हाट ही हैज़ डन, व्हाट सर्टिफिकेशन ही हैज़ डन. अगर वो ट्रेनर आपका खुद का नॉलेज हर साल अपग्रेड करता है या नहीं, तो आपको ये सब चीज़ें अपग्रेड देखनी पड़ती है. दैट्स व्हाई द चार्जेस आर सर हाई, बिकॉज अगर आप कोई भी कोर्स करने जाते हो तो अभी एक कोर्स का फीस है अराउंड 1 लाख रुपीज़. वो कोर्स है सिर्फ 1 महीने का. सो दैट इज़ वेयर द चार्जेस आर हाई. एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स, एंड व्हाट सर्टिफिकेशन दैट ट्रेनर हैज़ डन, दैट इज ऑल्सो मैटर. सिर्फ खुद का फिजिक अच्छा होने से उसके चार्जेस ज़्यादा नहीं होते. यू नीड टू चेक आउट हिज बैकग्राउंड, व्हाट ही हैज़ done in to keep that knowledge. So that's why the charges are high. So well said by Prashant. It is so important that when you hire professionals, you have to pay a professional fee for their services. So that's why there's an additional fee which is charged for their dedicated hour to you or dedicated time for you for specialized training. मेरा अगला सवाल है योगेश जी से. योगेश, आप वो टाइम से आते होंगे जब उतने मोबाइल्स वगैरह नहीं थे और सभी, फिर भी लोग टाइम पे आते थे. लेकिन आज की तारीख में जो व्हाट्सएप है, सब कुछ है, और आपको कैसा लगता है अगर सुबह 6 बजे आपका ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट आपको बुलाया किसी ने, और क्लाइंट नहीं आता और बाहर बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रही है, फिर भी आप कैसे भी करके पहुंच जाते हो? तो ये सब होता होगा बहुत, कम्युनिकेशन इश्यूज, काफ़ी चीज़ें होती है. हमें वो काफ़ी चीज़ें ट्रैकल करनी पड़ती है, मेंबर से हर टाइम मैसेज करना पड़ता है. हम ऐसे भी होता है कि हम भाग के आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मेंबर मैसेज करता है, अरे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं आ नहीं सकता. बट इन दैट पोजिशन वी कांट हेल्प इट, वी कांट शो आवर एंगर ऑल्सो. वी हैव टू कीप आवर माउथ शट एंड से दैट ओके सर, वी विल एडजस्ट सम अदर टाइम. राइट, इट्स हैपन. सो बेसिकली योगेश इज ट्राइंग टू से ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो काफ़ी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स रहते हैं विच ऑल्सो डिस्टर्ब्स देयर फैमिली लाइफ. आई लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टू अजित. ये सब ट्रेनिंग और ये कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को खुद को अपग्रेड करना? सर क्योंकि साइंस है, साइंस में हर बार कुछ तो नया आता है, और हर बार हमें हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. आजकल अलग अलग ट्रेनिंग्स आ रहे हैं, लाइक कैलिस्थेनिक आया है, बीच में पिलाटिस आता है. मार्केट में हर कुछ नया नया है. साइंटिफिकली उसका नॉलेज होना, अपग्रेड रखना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऐसा ना हो कि हम लोग ओल्ड स्कूल की तरह वैसे ही रहे, आगे चल के भी हमको वही नॉलेज रहे. नॉलेज अगर नहीं बढ़ता है तो आपके इनकम को भी अफेक्ट करेगा वो, और प्लस लोगों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा. उस हिसाब से हमें खुद को अपग्रेड रखना पड़ता है, खुद के लिए वर्कआउट भी करना पड़ता है, और इस तरह से फिर हम खुद को हर साल अपग्रेड करते रहना चाहिए. राइट. हाउ ट्रू इज दैट? बिकॉज अजीत जी ने जो बोला, लाइक यू हैव टू अपग्रेड, जैसे हम हर एक चीज़ का सॉफ्टवेयर का भी अपग्रेड करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गो विद द टाइम्स, वी लर्न न्यू थिंग्स, वी गेट न्यू आइडियाज, so that we make the workouts very interesting for the client. My next question is back to Prashant. Prashant, ये एक बहुत important चीज़ है, personal hygiene. Personal hygiene in the sense that because क्योंकि client के बहुत करीब रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि खाली 3 लोग किसी women के close आते हैं, जो है husband, boyfriend और तीसरा personal trainer. तो ये पर्सनल हाइजीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को, ट्रेनर्स को स्पेशली? जी बिल्कुल. यहाँ पे भी फ्लोर पे मैं जब ट्रेनर से बात करता हूँ तो मैं उनको यही बोलते रहा कि व्हेन लाइक
यू शुड स्मेल गुड. आपके कपड़े, आपके यूनिफॉर्म आपका क्लीन होना चाहिए. दाढ़ी रखो, अगर दाढ़ी रखना है तो शुड बी इन प्रॉपर शेप एंड यू शुड नॉट स्मेल. सो एंड दैट इज़ इट. सो पर्सनल हाइजीन इज दैट इम्पोर्टेंट. You're right. So as Prashant said, personal hygiene is so important because the proximity of the trainer to the client is very less. So generally you shouldn't feel that because everyone's sweating and inside this air conditioning, or if there is no if you don't have the facility of air conditioning, you start sweating, and maybe because of the clothes which you wear, your body odor may happen, and which might make the client and trainer both uncomfortable. योगेश जी, एक जो शायद हम सब अग्री करते होंगे, पर्सनल ट्रेनिंग जो है एक बहुत रिस्की प्रोफेशन है, क्योंकि क्लाइंट का स्टेबिलिटी नहीं रहता है इसमें. तो कभी आपके पास 10 क्लाइंट होते हैं, कभी क्लाइंट छुट्टी पे चले जाते हैं, तो अब क्या लगता है, अब ये बिल्कुल अनस्टेबल नहीं लगता आपको? Yes sir. As for income wise, there are a lot of up and downs happen. उसमें हमें काफ़ी टैकल करना पड़ता है. उसमें लाइक बच्चों का फीस होता है, घर का जो भी फैमिलीज अपना डे टू डे अपना रहता है मनीज का, वो सब संभाल के हमें करना पड़ता है. ईच चीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग सिर्फ बनाना खाते हैं बिकॉज वी हैव टू डू इट, बट इनकम ना होने के कारण समटाइम वी हैव टू ईट बनाना, समटाइम वी ईट पार्ले. बट दे से दैट कि यार ट्रेनर्स यूज ऑल द टाइम पाउडर्स एंड ऑल दैट. बट येस, व्हेन इनकम इज ग्रो तो डेफिनेटली हम थोड़ा हमारे फिजिक पे भी ध्यान देते हैं, बट साइमल्टेनियसली हमें थोड़ा सा इनकम काफ़ी अप एंड डाउन होती है, एंड दैट्स लाइक बिगेस्ट टास्क टू हैंडल इट. Right. This is so true because I have also faced this in the past, that there's a very unstable kind of thing, because sometimes personal training client wants a 3 months membership, sometimes they want an annual membership. So and at times, like, because in India इतने सारे festivals होते हैं कि we have lot of members not coming because they keep on traveling a lot, so slots become empty. So there are a lot of complications which keep on happening. So of course it's a very risky thing, but they face every day these challenges and come in front fresh. अजीत, आपसे सवाल ये है कि एज अ पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट, मतलब आप तो फिजिकली करीब 10 क्लाइंट या 12 क्लाइंट को ट्रेन करते हो, सो पर्सनल आपको कितना टाइम मिलता है अपने खुद के वर्कआउट के लिए, और कितना इंपॉर्टेंट है खुद का वर्कआउट? सो खुद के वर्कआउट के लिए वैसे हमें तो हार्डली कुछ टाइम मिलता है, लाइक 1 से 2 घंटा बीच में मिलता है. उसमें भी आपको डाइट करना होता है आपका सारा दिन. हमें ये भी देखना होता है कि उसी बीच में आपको रेस्ट भी थोड़ा सा चाहिए, प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए. देन खुद के लिए हम लोग ये वर्कआउट्स डिज़ाइन करते हैं कि जो हम क्लाइंट्स का वर्कआउट लेने वाले हैं वो खुद क्यों नहीं करके देखेंगे, तभी हम लोग क्लाइंट पे वो अप्लाई कर सकते हैं. राइट. और उसके बाद ही हमें समझ सके कि क्लाइंट का क्या कैसे होता रहेगा. उनको जब वो कोई भी वर्कआउट्स करते हैं तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे उनको पुश करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वो पूरे देखनी पड़ती है इसमें. राइट. सो यू हर्ड दैट कि कितनी ज़रूरी है कि खुद का लाइक पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ योर ओन सेल्फ एज अ ट्रेनर, बिकॉज द क्लाइंट्स लुक एट यू and then they approach you also, like physically, because if they see the trainer being very fit, you get more inquiries, and then the conversion is very high. लेकिन conversion की जब हम बात करते हैं प्रशांत, एक जो मैंने नोटिस किया है कि क्लाइंट्स के डिमांड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. लेकिन कोई लोग 2 महीने पहले आते हैं, उनकी शादी है तो क्विक रिजल्ट चाहिए होता है उनको, तो ट्रेनर के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है. और ये सब सारे वीडियोज़ देखते हैं, और वो वीडियो वगैरह देख के किसी सेलिब्रिटी का वीडियोस देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात सब चेंज. ऐसे लोग आते होंगे आपके पास? बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे. लेकिन एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर, एंड सिंस वी नो द साइंस बिहाइंड द वेट लॉस और मसल गेन, वी रियली डोंट प्रमोट द क्विक फैट लॉस और क्विक मसल गेन. वी टेल देम इन द साइंटिफिक वे दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट, जितना आप वेट लूज़ करोगे फास्ट, उतना ही वेट वापस आ जाता है. लाइक they go for like crash diet, they do lots of different things. So we as a personal trainer don't promote that. We tell members that this is not possible, so let's go slowly, because जितना slow जाओगे, जितना slow आपका weight loss होगा, जितना slow आपका muscle gain होगा, वो उतना long term रहेगा आपके पास. और जैसे सर ने बोला आज कि
आजकल गूगल ज्ञान वाले, यूट्यूब ज्ञान वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो वी एज अ प्रोफेशनल्स वी एक्सप्लेन देम व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द दैट पर्टिकुलर results, or you know whatever the channel they are following. So because on the YouTube, on the that thing, they will just show the one side, और उसके पीछे का जो साइंस है we try to convince accordingly. अजित, एक लास्ट सवाल है, ये तो नेवर एंडिंग है, क्योंकि मैं आपके सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही 15-20 साल ट्रेनिंग कर चुका हूँ ये सब स्लॉट्स के हिसाब से. एक बहुत फ्रेजाइल चीज़ होता है जो होता है ट्रेनर मेंबर रिलेशनशिप, स्पेशली रिलेटेड टू विमेन. तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर बेसिकली कैसे होता है कि सबसे पहले जब कोई वुमेन आती है तो हमें ये देखना है कि उनको कंफर्टेबल कैसे बनाए. कि जैसे बहुत लेडीज़ को ऐसा होता है कि करीब से ना, दूर से बात करके उनको समझाया जाए. और ट्रेनिंग में हमें तो यही देखना पड़ता है कि उनको विदाउट टचिंग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है. तो उस तरह से खुद को डेवलप करना पड़ता है. देन कुछ लेडीज़ को ऐसा होता है कि घर का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, यहाँ पे आके वो ज़्यादा कुछ भी बोल देते हैं, फटाक से कोई मेंबर्स फटाक से कुछ भी बोल देते हैं. ऐसे में हमें कैसे उनको हैंडल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. या इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बहुत बार लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी होते हैं हमारे, बहुत बार शॉर्ट टर्म के लिए भी आता है. और अगर कुछ थोड़ा भी गलत हो जाता तो वो बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है. और ऐसे इश्यूज होते भी हैं. बहुत बार मेंबर्स का गलती होता है, ट्रेनर्स का गलती होता है, और वो इश्यूज अलग तरीके से बाहर जाते हैं. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया तो आजकल तो बहुत जल्दी जाता है. इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन लेडी क्लाइंट एंड अ मेल ट्रेनर, वो डिस्टेंस आप कैसे मेंटेन रखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस योर बॉडी लैंग्वेज. सॉरी, मैं कट कर रहा हूँ आपको. डू लॉट ऑफ फीमेल क्लाइंट्स से एट द डेस्क दैट दे ओनली वांट मेल ट्रेनर्स? ऐसे नहीं? ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं. ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं कि उनको मेल ट्रेनर ही चाहिए. क्योंकि कैसा होता है कि उनका एक थिंकिंग होता है कि मेल ट्रेनर थोड़ा सा कुछ करेगा हमें. और वो उन्होंने पहले भी अभी एक्सपीरियंस लिया होगा या कुछ होगा. पर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ऐसे कि हमें मेल ट्रेनर ही चाहिए कि जो हमें हार्डकोर वर्कआउट भी ले सके. क्योंकि लोगों एक्सपेक्टेशन होते हैं. Okay, my last question for today will be for Yogesh. Yogesh, unstable income, pressure of getting results, this pressure of maintaining distance, maintaining etiquette, taking care of your own health. इतने सब चीज़ें होने के बाद एक सवाल आपसे, जब कम्युनिकेशन स्टेबल नहीं रहते, वो क्लाइंट आपको बुलाता है किसी भी इराटिक टाइम पे, आपका पर्सनल फैमिली कितना इफेक्ट होता है इसके कारण? और एज ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, बट एज अ ऑनेस्ट आंसर, येस, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन. अभी कभी हमें प्लान बनाया है मूवी जाने का या कुछ, मैसेज आता है मेंबर का कि यार आज मेरा 2-4 दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा एडजस्ट करो सेशन. बट सम टाइम हमें वो चीज़ हमें घर वालों को पहला बोलना पड़ता है कि भाई मैं पहला उधर जाता हूँ. ये एज पर लाइक आप देखें कि एज अ वी ऑल्सो वन सोल्जर छुट्टी पे आता है, दिवाली छुट्टी पे आता है, और सब इमरजेंसी आती है, बेचारा वो दिवाली छोड़ के वापस बॉर्डर पे चला जाता है. आर थिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, बिकॉज आर ब्रेड बटर इज on our workout and taking a member. And if a member is happy, as per like पहले बोला है कि रिन्यूअल, वो रेशो आपका मेंटेन रहता है और क्लाइंट के साथ आपका रेशो रिलेशन अच्छा रहता है. तो उसकी वजह से यू कैन अर्न इट एंड यू कैन get a more performance. And because that's like this industry has the mouth publicity. Then he approached, he said that okay, this client is a very good, like his trainer is nice. तो ये चीज़ें होती है. Yes, फैमिली देखना गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स अप एंड डाउन होती है, कभी फाइट्स होती है वाइफ के साथ. अभी मेरी बच्ची है तो उसका स्कूल का मीटिंग है, तो वो टाइम पे हमें सब एडजस्ट करके जाना पड़ता है. बट दैट्स नाउ आई गेट यूज टू इट, बिकॉज दैट्स लाइक प्रशांत ने बोला कि एक्सपीरियंस मैन परफेक्ट. सो इट्स लाइक दैट. तो आप लोगों ने सुना आज, शायद ही किसी चैनल या किसी टीवी पे कभी भी एक ट्रेनर की इनसाइड स्टोरी, ट्रेनर की लाइफ, ट्रेनर के प्रॉब्लम्स के बारे में किसी ने आज तक कभी भी डिस्कस नहीं किया होगा.
99 Workouts brings you all inside stories. These are real truths, candid chats, very unedited version, and these are with a lot of emotions because I can connect with them very well. These are one of the finest trainers. I have seen them since last 10 years. I've been watching them, and I can realize what they go through, and they are specialized. They're very smart guys, very fit always. So please do always remember, if you have to pay extra for personal training, there's a big reason for it. What Prashant said at the beginning is you pay for specialized service and then you get results. So personal training, of course, is going on a bigger scale. Everyone wants to have a personal trainer, and I'm sure the future is very bright. I am wishing all of you, the best wishes, and I'm sure you guys will do really well. Thank you, Prashant. Thank you, Yogesh. Thank you, Ajit. These are guys whom you should see on 99 Workouts. Don't miss this episode, even if you're in 2 parts. And wait for our next guest, and the next story is going to be even more interesting. This is Tushar Ramnan signing off from 99 Workouts. Keep watching.